Hello student, I am P. Kumar. In this video we'll discuss about the electric flux. Electric flux क्या है? Electric flux, it is the electric line of forces passes perpendicular to the surface is known as the electric flux. For example, if we take here, this is the surface. ये हमारे पास surface है. Electric line of forces इस passes along the directions. ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही है. तो देखिए ये हमारे पास दिस द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ऐसे हमारे पास सरफेस हो गया कितना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास कर रहा है. दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. तो ये देखिए हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इफ ए इज द एरिया एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए और वी कैन से दैट ई ए cos theta. Theta is the angle between the area vector and electric field. Theta is angle between area vector and theta is the angle between area vector and electric field. यहाँ देखिए अगर हमारे पास एरिया इफ इट इज द परपेंडिकुलर, ऐसे हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहा है, इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. द एरिया वेक्टर मेकिंग एंगल 0 डिग्री. यहाँ पर क्या होगा, एरिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद द एरिया वेक्टर. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड making, here electric field making an angle 0 degree with area vector. So the flux is equal to EA cos 0 degree and this is equal to EA. This is the flux. When the area vector and electric field making angle 0 degree, in that case the maximum flux will be passes through that surface. So this is the electric flux. If we consider, अगर मान लेते कैसे हमारे पास हो गया ये this is the electric field. ऐसे हमारे पास electric field है ये, this is the electric field. But the surface is in this, the same way surface is in this way. This is the area, this is the surface and the electric field is going along the directions and the area vector is along the directions. This is the area vector. What the angle formed with the area vector? This is the theta is the angle formed with the electric field and area vector. In that case electric flux, phi is the electric flux. Phi is the electric flux. The electric flux is equal to E डॉट ए. और देखिए यहाँ पर E और A के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा ये, थीटा. सो वी कैन से द ई ए कॉस थीटा. दिस इज द फ्लक्स passes through this area vector. This is the flux passes through this surface. If the electric field and area vector are making 90 degree, in that situations how many number of the flux passes through the surface? That should be, now see that if here is the ये हमारे पास क्या है, ये एक एरिया हमारे पास है, this the area vector and the electric field is passes along the directions. ऐसे हमारे पास electric field ऐसे पास कर रहा है, ये electric field is passes along the directions. यहाँ से ऐसे electric field is going along the directions but the area vector is along the direction. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासेस अलॉन्ग द डायरेक्शंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये हमारे पास ऐसे जा रहा है, ये इफ़ वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलॉन्ग द डायरेक्शंस ऐसे जा रहा है ये, बट द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन दिस वे. सो द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल 90 डिग्री एंड वी नो द कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. यहाँ पर देते हैं ये हमारे पास, ये देखिए ये अगेन वी कंसिडर दिस इज द, ये हमारे पास कोई सरफेस है ये एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन. ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है
and the area vector is along the directions. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ये, तो दिस इज इक्वल टू फ्लक्स. इन दैट केस फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री. यहाँ पर क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री. सो द टोटल फ्लक्स कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो द फ्लक्स इज इक्वल टू 0. It means that how many number of the electric line of forces passes perpendicular to the surface, that is known as the electric flux. In that case the theta is equal to, इस केसेस में क्या था, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर ये 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था ये एरिया वेक्टर के साथ. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल. इन दैट केस ई ए कॉस 0 डिग्री के इक्वल हो गई है. देखिए हमारे पास एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल 0 डिग्री. यहाँ पर थीटा फॉर्म हो रहा था तो ई ए कॉस थीटा, बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शंस, एरिया वेक्टर इज, सो दैट इज इक्वल टू 0. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉसेस लॉ, दैट इज द टोटल फ्लक्स passes, total electric flux passes through the closed surface. देखिए हमारे पास हुए, इट इज द, इफ हैव टू डिफाइन द गॉसेस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द, ऐसे हमारे पास हो गया, दिस द ई क्लोज सरफेस के लिए हम लिखते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ देखिए व्हाट इज द गॉसेस लॉ, तो ये देखिए दिस द टोटल सरफेस. अगर हम ऐसे करते हैं कि दिस इज द क्लोज सरफेस, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ और यहाँ पर हमने एक छोटा सा अमाउंट हमने डी एस कंसिडर कर लिया. दिस इज द डी एस, एंड ड्यू टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल पासेस along the directions of the area vector ds. तो देखिए how many number of the electric line of forces passes perpendicular to the surface, that is known as the flux. तो इस total closed surface के through how many fluxes passes, that is known as the electric flux. अब देखिए यहाँ पर Gauss's theorem, according to the Gauss's theorem, surface integral, this is the small amount of the surface integral of electric field. सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए इस सरफेस, ये पूरे सरफेस से को इंटीग्रेट कर देंगे. अगर हम पहले हम छोटा सा अमाउंट ऑफ सरफेस लिया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शन, सो द ई डॉट डी एस और देखिए यहाँ पर ई डॉट डी एस फ्लक्स इज इक्वल टू, वी कैन से दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. यहाँ पर हम लोग छोटा सा इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं, दैट इज द डी फाई के इक्वल हो गया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दैट इज फॉर द क्लोज सरफेस, दैट शुड बी इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो गॉस, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, surface integral of electric field is equal to q by epsilon naught. Here we can say the total 1 upon the epsilon naught times the total charge enclosed within that surface. So the Gauss's theorem को अगर हमको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, that is the surface integral Gauss's law, so we can say that surface integral of electric field is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface, or mathematically it is expressed as E dot ds is equal to q by epsilon naught, and this is known as the Gauss's law. Thank you.